are blessed today that we are joined in by our worthy principal, Ms. Paramjit Singh Tillo, the leader with the vision, the leader who is empowering us, the leader who is the source of inspiration for all of us and many. We are honored and feeling excited, very excited, ma'am, that you have joined us for this workshop organized for the fine art students of grade 11th and 12th of Kamla Nehru Public School. We would like seek permission from you to initiate today's session, ma'am. Yes, good morning, Japanjot, and all my beloved students and the very important guest today. Yes, please go ahead. Thank you, ma'am. So today with us, we have Dr. Visheshwari Tiwari ji. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you? Very good morning, ma'am. I'm very well, ma'am. Okay. So she is a professor in LPU. She is from South and working on a traditional art and traditional art style. So working very well in preserving our history. So thank you so much, ma'am. So she have done lots of exhibition and workshop. Not even done, organized lots of workshops and exhibition. So thank you for being here, ma'am. Thank you. Next, we have Mr. Yogesh Kumar Prajapati ji, who is working as an assistant professor in LPU, Lovely Professional University. His main subject of working is on monuments and working lots of hard work and generally a very hard worker in his field. So have done lots of workshops and exhibition as well. So welcome you, sir. Good morning, everyone. Good morning, Japanjot Kaur ji, and good morning, Principal Ma'am and हमारी विश्वेश्वरी Dr. Vishweshwari Tiwari Ma'am. Over to you, sir. Japanjot, ma'am. Excuse me. Okay. Yes, ma'am. क्या मैं दो शब्द कह सकती हूँ? Yes, ma'am. Sure. Okay. All Thank is you. well. Thank you, your permission. Thank you. Principal ma'am, good morning. Hello, Principal ma'am. Japanjot ma'am. Yes. Principal sir, ma'am. Good Principal morning. ma'am. Yes. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Myself, Dr. Vishweshwari Tiwari. I'm from Karnataka. मैं हिंदी में बोलना चाहूँगी because I love Hindi. Can you permission me? बिल्कुल हिंदी तो हमारी मातृभाषा है जब मर्जी जहाँ मर्जी बोलिए बहुत प्यारी भाषा थैंक यू मैम थैंक यू वेरी मच मैम मैं वैसे साउथ से हूँ लवली में मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस मिनिमम 20 to 25 इयर्स का है देन मैं इस फाइन आर्ट्स फील्ड में मैं पेंटिंग डिपार्टमेंट से हूँ और लवली जो प्लेटफॉर्म मुझे दिया है तो मैं खुशकिस्मत अपने आप को समझती हूँ कि लवली की वजह से मैं यहाँ नॉर्थ में आई हूँ और नॉर्थ के सभी अच्छे अच्छे कलाकारों से मिल रही हूँ अच्छे लोगों से मुलाकात हो रही है आपसे मुलाकात हो रही है सभी स्कूल के बच्चों से मुलाकात हो रही है ये मेरी खुशकिस्मती है मैम मैं लवली के बारे में 2 शब्द आपसे इसीलिए कहना चाह रही हूँ कि लवली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए बच्चों के लिए और यहाँ पे जो लोग भी सफर कर रहे हैं अपने लाइफ को लेके उनके लिए एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो हमें इंट्रोड्यूस करवा के दे रहा है मतलब हमारी पहचान को और लोगों तक पहुंचा रहा है तो मैं अपने आर्ट फील्ड में पेंटिंग में यहाँ पे आई हूँ तो मुझे एलपीयू ने रिकॉग्नाइज किया है मैं ऐसे कहना चाहूंगी क्योंकि मैं इतने साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ बट मैं नॉर्थ में नहीं आई थी तो एलपीयू की वजह से मैं नॉर्थ में आई हूँ तो आज हमारे यहाँ योगेश सर जो डेमो दिखा रहे हैं उन्होंने भी अपनी लाइफ में 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी स्कल्पचर में बहुत अच्छे एक्सपर्ट रहे हैं हमारे पास में तो आज उनका हम डेमो दिखाना चाह रहे हैं आपको कि ताकि आप बच्चे जो है इस फील्ड को जानने की कोशिश करें क्योंकि आज के डेट में
सभी पेरेंट्स जो है आर्ट फील्ड को बहुत अच्छे से स्कोप दे रहे हैं, मतलब उसे अच्छे से प्रमोट भी कर रहे हैं बच्चों को कि आर्ट फील्ड में जाए। आर्ट फील्ड हमारा ऐसा है कि वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी फील्ड का हो, उसे पेंटिंग बनानी आनी चाहिए, क्ले मॉडलिंग करनी आनी चाहिए। वो इसीलिए कि बच्चा अपने आप को फ्रेश रखता है, अच्छी सोच रखता है, क्रिएटिव माइंड को डेवलप करता है। ये क्रिएटिविटी जो डेवलप होती है इस फील्ड में, उससे वो किसी भी फील्ड का रहने दो, वो अपने फील्ड में अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सपोज कर सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सभी बच्चे जितने भी है, चाहे बच्चे हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे प्रिंसिपल मैम हो, कोई भी हो, इस फील्ड को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड आपको बहुत ही तरोताजा रखता है। आप हमेशा अपने आप को खुशनुमा महसूस करेंगे, हमेशा अपने आप को जिंदा दिल महसूस करेंगे। वो इसलिए कि कितना भी टेंशन हमें होता हो, जो भी फाइल का हो, एकेडमी का हो, जो भी टेंशन होता है, वो हम अगर आधा घंटा भी अगर इस फील्ड के लिए निकालते हैं, एक ड्राइंग बनाते हैं, एक पेंटिंग बनाते हैं, या तो एक पोर्ट्रेट बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, उससे हम एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी अपने आप को इस फील्ड के अंदर ढालिए। कम से कम 24 घंटे में से आधा घंटा इस फील्ड के लिए निकालिए और आप सभी ड्राइंग बनाइए, पेंटिंग बनाइए। बस मुझे कहने के लिए प्रिंसिपल मैम ने अनुमति दी है, तो मैं उनका धन्यवाद अर्पण करती हूँ। और मैं आगे चाहती हूँ कि आप योगेश सर से 2 शब्द उनसे उनके फील्ड के बारे में जाने और उनका डेमो सब लोग आनंद से एंजॉय करें, ये मैं चाहती हूँ। तो धन्यवाद जपन मैम, प्रिंसिपल मैम, थैंक यू वेरी मच। हेलो। Yeah, thank you so much. थैंक यू मैम। Thank you. Virtual applause for you both, ma'am. Okay, तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं सभी? Your voice is little low, Yogesh ji. ओके, क्या अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, हाँ सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, ठीक है। अभी आप मैं अभी अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं अपना डेमोन्स्ट्रेशन या जो भी मेरा जो एक्टिविटी है मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग मुझे परमिशन दें तो। प्रिंसिपल मैम एंड ऑल मेरे सीनियर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं हमारे इस लिस्ट में। Please go ahead, Mr. Yogesh. Please go ahead. थैंक यू प्रिंसिपल मैम, थैंक यू सो मच। ओके, सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे मेरे सबसे पहले जो मेन मुद्दा है, मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनकी वजह से मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। इन सब ने मुझे इनवाइट किया है, पहले तो उन सब के लिए थैंक यू। और एक बार मैं स्टूडेंट्स की प्रेजेंस कंफर्म करना चाहूँगा कि क्या सब लोग अभी हैं, एक्टिव हैं, सब मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपर, क्योंकि मेरा लेक्चर या मेरा डेमोन्स्ट्रेशन जो डिलीवर करना है मुझे मेरे स्टूडेंट्स के लिए करना है। बाकी सब यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, है ना? तो स्टूडेंट्स, कैन यू हियरिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो आप लोग रेडी हैं इस सेशन के लिए? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो अभी देखो, सबसे पहले मैं अपना सेशन स्टार्ट करूंगा, उससे पहले सब लोग एक दूसरे को जान लें कि मेरा नाम योगेश है, जैसा कि सबने बताया, और मैं बेसिकली स्कल्पटर हूँ और मैं ड्राइंग भी करता हूँ, पेंटिंग भी करता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत है आपको अवेयर होना, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। तो आप लोग फाइन आर्ट में इंटरेस्टेड हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, शायद इसीलिए आप लोग हमारे बीच मौजूद हैं। इसी वजह से आपके स्कूल ने, कमला नेहरू स्कूल ने ये सेशन रखा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए आपके स्कूल और आपकी यूनिवर्सिटी हमेशा रेडी रहती है सिखाने के लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। ओके, मालेश एंड परमजीत जी एंड चारू मैम, सब लोग सुन रहे हैं मुझे? तो ये आपको दिख रहा है क्या सामने? मैंने एक ब्लैक बोर्ड लगाया हुआ जिस पे 3 सीटें मैंने लगाई हुई हैं अभी। ये क्लियर है क्या? सबको दिख रहा है? Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है। सो राइट नाउ मैं अभी कुछ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो पोर्ट्रेट है, और एक पोर्ट्रेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उससे पहले क्या ये क्लियर है? आपको क्लियर दिख रहा है सब कुछ?
Yes, sir. I believe ये the छोटा सा entire sheet cannot Yes, be sir. seen. पूरी शीट आपकी नहीं दिख रही है, आधी ओके आधी ओके आप लेट मी कैमरे सी की मैम, एक पोजीशन मिनट बस चेंज मुझे करें। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं दूसरा कैमरा सेट करता हूँ अभी बस। Okay, till that time, student, you can gather your copy and pen and write down your important points, what sir is going to teach you all. Even I'm so excited, that's why I'm holding my paper and pencil as well. ओके तो अभी ये विजिबल है आप सबको? Sir, move it on a little side. ओके मैंने 2 कैमरों को सेट किया हुआ है और जिसको जिस कैमरे में प्रॉपर दिखे वो वहां से अपना ये नॉलेज गेन कर सकता है। पहले तो मैं कंफर्म करूंगा स्टार्ट करने से पहले, क्या ये विजिबल है सबको? Yes, sir. यस। ओके जिस पर मेरा हाथ रखा हुआ ये पेज विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले मैंने आपको ये पोर्ट्रेट दिखाया, ये सिंपल सा पोर्ट्रेट है, ठीक है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि फाइन आर्ट डिपार्टमेंट, फाइन आर्ट सब्जेक्ट, फाइन आर्ट जो एक फाइन आर्ट नाम का जो भी सब्जेक्ट है, ये सच में बड़ा बहुत प्यारा है और हम लोगों को हमारे मन की बात करने के लिए, हमारे अंदर जो भाव होते हैं, जो क्रिएटिविटी होती है, उसको निकालने का प्रॉपर मौका देता है और इसीलिए हम लोग फाइन आर्ट पसंद करते हैं। मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो किसी भी पोर्ट्रेट को बनाने से पहले उसका बेसिक फंडा क्या है, बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊंगा पहले। तो सबको क्लियर सुनाई दे रहा होगा, आई होप सबको सुनाई दे रहा है। Yeah. Yes, sir. ओके तो अभी ये विजिबल है आपको? Yes, sir. अभी अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो किसी भी पोर्ट्रेट को बनाने से पहले सबसे पहले मुझे बच्चे मेरे स्टूडेंट से सवाल करूंगा स्टार्ट करने से पहले कि बच्चों जब भी हम कोई पोर्ट्रेट बनाते हैं, ह्यूमन हेड या ह्यूमन का कोई हेड बनाते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले ड्राइंग करने के टाइम हमें किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है या उसका मेजरमेंट कैसा होता है? अगर किसी को पता है तो एकदम फ्री होकर बताएं। मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे सिखाओगे, मैं आपको सिखाऊंगा। तो कोई है, कोई बच्चा ऐसा जो इसके बारे में कोई नॉलेज रखता हो? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी पोर्ट्रेट बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक ओवल शेप तैयार करते हैं। ये विजिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। तो सबसे पहले हम कोई भी पोर्ट्रेट बनाते हैं तो पहले एक सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल है, सबसे पहले सर्कल बनाएंगे। सर्कल के बाद हम उसे एक अंडे के आकार में शेप देंगे, ये अंडे के आकार का शेप है। ये ओवरऑल जो शेप है
ये एक ओवल शेप हो गया। क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। इसके बाद क्या Yes, करते sir. हैं, हम इसको वर्टिकल डिवाइड करेंगे सेंटर से। क्या करेंगे, इस सर्कल को वर्टिकल डिवाइड करेंगे सेंटर से। ये हमने इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर है यहाँ तक सबसे? Yes, sir. Yes, वेरी गुड। Sir. yes, sir. इसके बाद अभी क्या करना है हमें, अब इसको इस मतलब अपर पॉइंट से लेके और नीचे का डाउन पॉइंट जो है, इसको और इसको सेंटर से हाफ करेंगे हॉरिजेंटली। कैसे करेंगे? हॉरिजेंटली। ये हमने इसको हॉरिजेंटल डिवाइड किया। फिर उसके बाद हॉरिजेंटली जो फर्स्ट एंड हाफ किया है, उसके बाद हम इसका और इसका सेंटर हाफ करेंगे फिर से। और जहां सेकंड हाफ हमने किया है, उसके बाद हम चिन के पास और उस सेकंड हाफ के बीच से सेंटर से डिवाइड करेंगे। हमने 3 जगह से डिवाइड किया है हॉरिजेंटली इस ओवल शेप को। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. देखो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत मजा तभी आएगा जब आप इंटरेस्ट रखोगे और आप मेरे को रिस्पॉन्स दोगे फटाफट, तो ज्यादा अच्छा लगेगा काम में। ठीक है, तो फटाफट मुझे जवाब देते रहिए, हाँ जी हमको इतना समझ आ रहा है, इतना समझ नहीं आ रहा है, जो भी है। Yes, student, very good. Be attentive and responsive to our sir. You can boost up sir's mode. ओके, सो अभी सबसे पहले हमने क्या किया, एक ओवल शेप बनाया। उसके बाद उसको ओवल शेप को हमने वर्टिकल डिवाइड किया सेंटर से। उसके बाद फिर उसी ओवल को हमने हॉरिजेंटली डिवाइड किया सेंटर से। देन हॉरिजेंटली डिवाइड जो किया फर्स्ट नंबर का जो था, उसके बाद हमने सेकंड हाफ पर डिवाइड किया जहां पर हमारी नोज आती है। फर्स्ट हाफ पर हॉरिजेंटली हमारी आईज आती है इस जगह पर। इसके बाद नोज और इसके बाद फिर माउथ। तो ये हमारे पोर्ट्रेट का स्ट्रक्चर होता है बेसिक। इसके बाद फिर हमारे कान के बारे में बात करें तो ईयर जो होते हैं वो हमारे नोज और आईज इन दोनों के बीच में आते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं। दिख रहा है सबको? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो ये आपका बेसिक हो गया ड्राइंग में। अभी हमें क्या करना है कि अब आईज, नोज और माउथ बनाना है। तो बेसिक क्या होता है, सबसे पहले हम लोग आईज को बनाते हैं। जब एक किसी फेस पर आंखें जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो 2 आंखें होती है हमारे फेस में। सबके पास पता है सबको कि 2 आंखें होती है हमारे फेस में? Yes. हाँ जी, 2 आंखें होती हैं। किसी के 3 आंखें तो नहीं है ना? No, sir. गुड, वेरी गुड। मतलब तुमको पता है सबको, आपको कि हमारे पास 2 आंखें हैं। तो जो एक आंख और दूसरी आंख जो होती है, उन दोनों की आंख जो है, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, क्या किसी को पता है यहाँ पर? Yes, बच्चा. Yes, sir. मैं सिर्फ सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, मैं मेरे स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं यहाँ पर। प्लीज स्टूडेंट्स आप इंटरेस्ट जगाइए, बाकी तो सब टीचर हैं यहाँ पर, हमारे सब मेरे सीनियर हैं यहाँ पर। सो मैं एक दो स्टूडेंट्स के नाम लेना स्टार्ट करूंगा। ओके, तो किसी को पता है क्या है डिस्टेंस एक आंख से दूर? सर एक आंख का डिफरेंस होता है। ओके, तो देखो जी, नेटवर्क के चलते थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसको आप टॉलरेट करना जरूरी है कि नेटवर्क हमारे बीच में प्रॉब्लम देगा।
तो हमने बताया हम थे आंखों पर, आंखों एक आंख से दूसरी आंख के बीच में सिर्फ एक आंख का डिस्टेंस होता है। अगर आपकी पहली आंख 1 इंच चौड़ाई की है तो दूसरी आंख भी 1 इंच की चौड़ाई पर ही होगी और उन दोनों की आंखों के बीच में 1 इंच का ही डिस्टेंस होगा। मैं अभी दूसरे वाले पेपर पे बता दे रहा हूँ आपको, ये दूसरा वाला पेपर है। ओके, ये दूसरा वाला पेपर है। मैंने बोला कि हमारे आंखें का डिस्टेंस जो होता है, दो आंखें होती हैं, पहली आंख ये हो गई, दूसरी आंख ये हो गई, और तीसरी आंख जो है वो हमारी होती नहीं है, इसलिए हमारी दोनों आंखों के बीच में एक आंख का डिस्टेंस होता है। तो जब हम आईज बनाते हैं तो ये जो सेंटर जो हाफ लिया था आपने वर्टिकल, इससे एक डिस्टेंस बना लो कि मुझे इतना डिस्टेंस है तो इतनी बड़ी आंख यहाँ होगी और इतना ही बड़ी आंख तो यहाँ होगी। तो हमें दो आंखें बनानी है, जैसे हमारे फेस पर दो आंखें होती हैं। सबसे बेस्ट तरीका है हमारी दो आंखें बनके तैयार हो गई है एक फेस में। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रहा है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उसके बाद फिर नोज की दूरी आती है। अब देखो यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लेना अपने स्केच बुक पर, अपनी नोटबुक पर, कि हमारे फेस में किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए किसी भी फेस को बनाने से पहले। और यही प्रोसेस हमारा क्ले मॉडलिंग में जाता है आगे। जब हम क्ले में काम करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि जो हम ड्रॉ कर रहे होते हैं वही ड्रॉ हमारा क्ले मॉडलिंग में भी होता है। सिर्फ क्या डिस्टेंस होता है कि यहाँ पे हम लाइट एंड शेड से काम करते हैं और वहां पर हम डेप्थ एंड हाइट से काम करते हैं। हमें वहां पे डेप्थ देनी पड़ती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस से बाहर निकालना है तो हमें डेप्थ देनी होती है वहां पे, और वही प्रोसेस यहाँ पे है। तो अभी क्या नोज बनाते हैं। देखो ये जो आंख का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये वाला, इसको आप जब वर्टिकल सीधा लेके आओगे, जितनी चौड़ी आंखें हैं मोस्टली कॉमन रेशियो में अगर बात करूं मैं तो इतनी ही चौड़ी नोज होती है बंदे की। अब आते हैं नोज कैसे बनती है। आपको नोज बनाना बताता हूँ कैसे बनती है। सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, ऐसे एक सर्कल बनाया, एक सर्कल बना के उसको सेंटर से थोड़ा डाउन करके हॉरिजेंटली हम उसको डिवाइड करेंगे। ओके, Okay, sir. इसको यहाँ से डिवाइड किया, फिर इसको वर्टिकल डिवाइड करेंगे सेंटर से। तो हमारी नोज तैयार है लगभग लगभग। अभी क्या करना है कि एक छोटा सर्कल हमें इस साइड बनाना, राइट साइड, और एक बनाना लेफ्ट साइड। और उसके बाद जो हमारे नाक के पॉइंट्स होते हैं, डेप्थ पॉइंट्स होते हैं, उनको बाहर निकालते हैं ऐसे। ये आपकी नोज क्लियर है? ओके, नोज क्लियर हो गई हमारी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर नोज बनाते हैं। एक बड़ा सा सर्कल बनाया, फिर दो छोटे छोटे सर्कल बनाए लेफ्ट एंड राइट में। उसके बाद हमने उसको डेप्थ दी तो ये नोज बन के आ गई। सबको क्लियर दिख रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ओके, देन उसके बाद हमारा अब लिप्स की बारी आती है। अब लिप्स कहाँ, आपको पता है कि हमारे जो फेस था टोटल, सेंटर में आईज आती है, फिर आईज के नीचे और चिन से लेके आईज के बीच में नोज आती है, फिर नोज और चिन के बीच में लिप्स आते हैं। अब लिप्स हमें कैसे बनाने हैं, अब लिप्स भी बनाना दिखाता हूँ आपको कैसे बनाते हैं। एक आप हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे, कोई भी हॉरिजेंटल लाइन खींचने के बाद आप उसमें एक वर्टिकल लाइन खींचोगे छोटी सी, जैसे प्लस का निशान होता है उस टाइप से। ये आपको दिख रहा है? yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो उसके बाद अभी क्या करना है, हमको ऊपर वाली जो वर्टिकल लाइन है इस पे हम छोटा सा यू बनाएंगे, यू, ABCD वाला यू, नॉट YOU वाला यू। ओके, Okay, sir. ठीक है। उसके बाद हम अब इसको धनुष जैसा इस पॉइंट से राइट साइड एक लाइन खींचेंगे, इस पॉइंट से लेफ्ट साइड एक लाइन खींचेंगे, और नीचे एक हल्का सा उल्टा यू बनाएंगे जैसे चांद होता है।
और उसको ऐसे हम मिला देंगे एक दूसरे के कॉर्नर से। ये आपके लिप्स बन गए। लिप्स दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैं छोटा सा ब्रेक देके आप लोगों से पूछना चाहूंगा बीच में, आपको सबको समझ में तो आ रहा है ना ये? Yes, हाँ जी sir. सर। Yes, sir. है ना? तो आपने क्या सीखा? आपने आईज बनाई, नोज बनाई, लिप्स बनाए। अभी क्या बचा? अभी बचा सिर्फ कान। सिर्फ कान बचा है अभी। तो अब कान कैसे बनाते हैं? एक छोटा, जैसे मैंने पहले बताया था, जो ओवल शेप होता है, जो एग होता है, एग की शेप में जब कोई लाइन खींचते हैं आप, एक एग बनाया, है ना? ये एग बनाया और एग को हमने हल्का सा मूव कर दिया इस टाइप से, यहां से, ठीक है? सबको दिखाई दे रहा है ये? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो अब अभी क्या है, हमने एक छोटा सा इसमें वाई बनाया। वाई कैसे बनता है? ऐसे, इसमें एक वाई बनाया, इसको हमने क्लियर किया और ऐसे करके ये आपका इस टाइप से आपका कान बन गया ये, ठीक है? तो अभी कान हमारा बेसिक नहीं है, हमारा था मेन कॉन्सेप्ट हमारा फेस का स्ट्रक्चर लेना। अभी हम वापस पुराने वाले फेस पर आते हैं, और इस फेस में जब आप देखेंगे तो हमें वो सारे ऑब्जेक्ट बना देने फटाफट। यहाँ पर हमें एक आई बनानी है, ऐसे ही एक आई यहाँ बनानी है हमें, फिर उसके बाद नोज बनाना है, ठीक है? और ये नोज बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे एक लिप्स बना लेंगे, और ये चेहरा हमारा लगभग क्लियर हो जाता है। उसके बाल भी बनाने हैं आपको अब। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर चेहरे का हो गया बच्चों। आप सबको क्लियर है ये चेहरा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. wow. होपफुली सबको समझ में आया होगा। ये एक बेसिक ड्राइंग थी, मैंने आपको ड्राइंग बताई है। अगर इसके रिगार्डिंग एक दो सवाल करने आपको फटाफट कर लो, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ क्ले में काम करना। क्ले में काम कैसे करते हैं, ठीक है? किसी को कोई सवाल करना है? किसी को कोई Yes, क्वेश्चन करना बच्चों? if anyone have any query, they can ask the sir. Excuse me, sir. यस, बोलो Sir, बच्चे। is there any difference between the structure of male and female? यस, दोनों फेस में स्ट्रक्चर माइनर डिफरेंट होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। आप देखो कि जो मेल जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी चिन का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा वाइड होता है, और फीमेल में जो चिन का हिस्सा होता है वो थोड़ा शार्पनेस में होता है, थोड़ा पतला होता है नीचे के साइड में। ये कॉमन फेस की रीडिंग के अनुसार इस तरीके से हम लोग चेहरे को बनाते हैं। तो जो मैन का जो मेल का जो फेस है, उसका थोड़ा आपको नीचे का जबड़ा जो होता है, ये जॉ लाइन जो होती है, वो थोड़ा वाइड में करके बनाना है, और बाकी फीमेल में आपको थोड़ा कम बनाना है। बस इतना अंतर होता है, और कोई अंतर नहीं होता। और ये अंतर सिर्फ मांसपेशियों का होता है, ना कि स्कल में होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Thank you, sir.
ओके ठीक है, चलो अभी हम किले में बात करते हैं सबको। मैं आपके सामने किले लेके आ गया हूँ और अभी हम किले में काम करेंगे, ठीक है। सर इस पोर्ट्रेट को हटा देते हैं यहाँ से। इसको मोड़ के ऊपर से इस पे फोकस करा दो, इसका कैमरे। सीधा सीधा। ठीक है, ओके। तो अभी ये जो मेरे हाथ पे जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ये आपको शायद में भी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये क्ले है। क्या है ये? क्ले है। ये क्ले है। अभी कोई मुझे ये बताएगा क्ले कितने प्रकार की होती है? स्टूडेंट्स। सर एक सूखी होती है, एक गीली होती है। वेरी गुड। कौन है ये महाशय, जरा मुझे नाम तो बताओ। एक सूखी होती है, एक गीली होती है। पतली भी नहीं होती, पतली भी होती है क्ले बेटा। सर मोटी भी होती है। ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो आर्टिस्टों को वैसा ही होना चाहिए जैसा अभी आप लोग रिएक्ट कर रहे हो। अब ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोग ध्यान दे रहे हो। बट बेटा नॉलेज की बात ये है कि ना तो क्ले सूखी होती है ना गीले होती है। मैंने टाइप ऑफ क्ले बोला है। और क्ले हम जो यूज करते हैं फाइन आर्ट में, क्योंकि आप कभी भी जब काम करेंगे ना, तो आपको एक ऐसी क्ले चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले जिसमें स्ट्रेंथ। आप किसी रेत से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, खासकर तब जब उसमें स्ट्रेंथ ना हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। क्लियर है सबको? मोटी पतली किले के Yes, साथ sir. आपको क्या पता चला कि किले में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसमें चिकनापन होना चाहिए, स्मूथनेस होनी चाहिए। तो आप अभी इसको मैं ऐसे ऐसे कॉइल बना के इसको मैं ऐसे मूव करूंगा तो ये मूव हो जा रही है, बहुत आराम से मूव हो रही है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ किले में होनी चाहिए सबके। उस किले से हम लोग काम करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक चेहरा बनाया था, छोटा सा चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे हाथ में। ये बहुत छोटा चेहरा है, एक मेल फेस है। तो वैसा ही फेस हम अभी बनाएंगे। इसको बहुत ध्यान से देखना सब लोग, क्योंकि अगर नहीं ध्यान से देखोगे तो आपका इंटरेस्ट लेने का कोई मतलब नहीं है। और बीच बीच में सवाल आप करते रहो ताकि मुझे ये पता चले कि बच्चे मेरे एक्टिव हैं इस वर्कशॉप के लिए, ठीक है। तो ओके चलो सर। हम लोग अभी बैक चलते हैं। सबसे पहले हमने ड्राइंग में क्या किया था, फटाफट जवाब देंगे हम लोग। अब आपको क्वेश्चंस का टाइम आ गया है, आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ड्राइंग में फेस बनाने के लिए? सर एक सर्कल बनाते हैं। तो अभी मैं आपके सामने क्या बना रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ। किसका? किले का। Yes, ma'am. ये आपका किले में एक सर्कल बना दिया मैंने अभी। उसके बाद हमने क्या किया था? Oval shape night. हांडी किया कर। अब इसको ओवल शेप देंगे। तो ओवल शेप कैसे आएगा? जब आप किसी भी एक कॉर्नर पे एक्स्ट्रा मिट्टी लगाएंगे इस टाइप से। ये आपने एक्स्ट्रा मिट्टी लगा के और इस टाइप से आपने उसको ओवल शेप का शेप दिया, हाथों से घुमा घुमा के बहुत अच्छे से। देखो क्ले का नेचर बहुत अच्छा होता है। ये इतनी सॉफ्ट होती है कि आपको फील होगा कि आपने कुछ इतना अच्छा सॉफ्ट मीडियम हाथ में लिया हुआ है जो आपको बहुत शांति देता है। ये सबसे बेस्ट मीडियम है फाइन आर्ट के अंदर, जो बहुत सॉफ्ट है। जैसे कलर हमारी आंखों को बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे ही ये जो क्ले है ये हमारे फिजिकली जो टचिंग होती है, जिससे हम
छूते हैं, स्पर्श करते हैं, उससे बहुत अच्छा फील होता है। तो ये वही नेचर है क्ले का, जिसको आप आनंद ले सकते हो। ओके, तो अभी हमने क्या बनाया? ओवल शेप। ओवल ओवल शेप। शेप। बेटा आप जो बोल रहे हो उनका नाम बताओ मुझे, मैं फिर नाम ले लेके बात करूंगा। मुझे बहुत अच्छे लगे, 2 बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे हैं, मेरे को जवाब दे रहे हैं। जसप्रीत या सर जयश्री? विवेक सर सर नहीं यार, गुरलीन। अब सब लोग नाम लेंगे अपना, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। गुरलीन, विवेक, जसप्रीत, और कौन कौन है? समन। सुनील सर। सुनील, समन। ओके, ठीक है। तो अभी आपके सामने ओवल शेप बना के मैंने रख दिया है। देखो, आपको जब भी कोई चेहरा बनाना है, बेसिकली बड़े लेवल पर जब हम बनाते हैं ना बेटा इसको, तो हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। और जब हम बस स्टडी पर्पज से, हमें कुछ अपना मन शांत करने के लिए, हमारे मन में ख्याल आ रहे हैं अच्छे अच्छे कि हम कुछ बनाएं, अगर उस टाइम आपको काम करना और आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, तो आप किले से काम कर सकते हो। किले में क्या करोगे आप? छोटा सा, जैसे मैंने हाथों में किया हुआ है, ये बहुत बड़ा नहीं है, आपके हाथों में ये आ सकता है। और सेम प्रोसेस हम जैसे ड्राइंग में समझाए थे, वही प्रोसेस यहाँ पे होता है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पर हम लोग लाइट एंड शेड से काम करते हैं, और यहाँ पर हाइट एंड डेप्थ से काम करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ओके, ओवल शेप के बाद हमने फिर क्या किया था? सर कट लगाना है। कट कैसे लगाना है वो भी तो बताइए आप। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजेंटल या वर्टिकल? वर्टिकल। वर्टिकल किसने कहा है बेटा? नाम बताओ अपना। सर पहले वर्टिकल है ना। वर्टिकल जो बोला था वो किसने बताया था? उसका नाम बताओ मुझे। सर जिसने पहले बोला का है। तो पता नहीं। नहीं नहीं, मैंने ये बोला है कि आपके बीच में से जिसने वर्टिकल बोला है, उस बच्चे का नाम क्या है? सर मैंने नहीं बोला। किसने बोला था? अरे मतलब सही बोला है, डरो मत यार, डरो मत आप। सर बिल्कुल मैंने परफेक्ट बोला आंसर था। दिया है। क्या नाम है बेटा आपका? समन। समन, वेरी गुड। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, आप अच्छा काम करोगे फील्ड में। वेरी गुड। तो हमने सबसे पहले इसको वर्टिकल डिवाइड किया। अब उसके बाद कोई जवाब देगा हमें सेकंड क्या करना है? सर हॉरिजॉन्टल करना है सर। हॉरिजेंटल कहाँ से करना है? सर सेंटर में। सर करने से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी हमारे बीच में हैं, अगर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो बोल सकते हैं, सबको फ्रीडम दे रखी है। मैं पैसे नहीं लूंगा किसी से, टेंशन मत लो, है ना। तो हमने अभी क्या किया? इसको हॉरिजेंटल डिवाइड किया 1 टाइम। अभी और कितना करना है हमको हॉरिजेंटल डिवाइड? ये 1 टाइम और करना है सर। 1 टाइम और किया हमने, उसके बाद 1 टाइम और करना है, 3 टाइम यस सर। हमको ये डिवाइड करना है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, आप देख सकते हो सामने। मैंने इसको 3 टाइम डिवाइड किया हॉरिजेंटली फ्रॉम सेंटर हाफ ऑफ ओवल्स। तो अब इसमें क्या करना है? अब इसके बाद बताना है, क्योंकि अभी तो आपने कुछ नहीं सीखा था, सिर्फ ड्राइंग की बात हो रही थी। अभी आप मेन फोकस तो करेंगे कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या आएगी। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। टूल्स मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। जैसे मैं आपको कुछ आसान टूल बता देता हूँ, जैसे कि आप घर में नाइफ रखते हो, किचन में नाइफ होती है, अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप नाइफ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक नाइफ ले लीजिए। आपको इस वे में जब यहाँ तक आप अपना स्टेप पूरा कर लें, तो फिर नाइफ लाके, आपको कोई टूल की नीड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नाइफ ले लो। नाइफ से आपको क्या करना है कि वो ये जो आंख वाला हिस्सा है, आंख का डिवाइजेशन आपको पता ही है कि सेंटर से एक आंख की दूरी पे हमें दूसरी आंख बनानी है। तो सपोज दैट हमने यहाँ पर आंख बनानी है, तो एक आंख यहाँ बनानी है। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो आंख वाला हिस्सा है ना, वहां से मिट्टी को हटाना है किसी टूल्स के जरिए। ऐसे किसी टूल्स के जरिए हमें मिट्टी को हटाना है वहां से। और जो मिट्टी हटी थी वहां से, जो रिमूव हुई है मिट्टी, वो मिट्टी को हमें नाक वाली जगह पर लगाना है, ऐसे। ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है यस आपको? सर। यस 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 सर। सर। यस सर। क्या करना है? हमने क्या किया? सबसे पहले
हमने मिट्टी कहाँ से हटाई, आंख वाले पार्ट से मिट्टी को हटाया ऐसे, और किस टूल से हटाया हमने, चाकू से, नाइफ से, ठीक है। और उस मिट्टी को वापस हमने कहाँ लगाया, नोज वाली जगह पर, जहाँ पे हमारी नोज होती है। अब मुझे ये बताओ, नोज चेहरे में होती है कि नहीं होती है भाई? होती है सर। सर कौन कह रहा है ये होती है? सर नो। सर लो किसने छोटा या बोला? बड़ा होता है सर? ओके, तो अभी हमने नोज बना दी है, अब हमारी लिप्स की बारी है, ठीक है। अब लिप्स की बारी है हमारी। अब लिप्स हमारे कहाँ थे बताओ जरा, लिप्स का भी हमें स्पेस बताओ, किस जगह हमने लिप्स बनाना था। नाक के नीचे सर, जो आपने अंडरलाइन किया था, ये कट वेरी लगा गुड। था। क्या नाम है आपका? सुनील सर। सुनील भाई, बहुत बढ़िया। तो अभी आपको लिप्स बनाने, लिप्स में क्या करना है आपको, वही चाकू लेना है आपको, वापस वही चाकू, उसी चाकू से आपको क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये छोड़ के इसके नीचे वाली मिट्टी निकालनी है आपको, नीचे वाली मिट्टी ऐसे, यहाँ के नीचे वाली मिट्टी आप निकालिए, ठीक है। अभी दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर दिख रहा है। सर। ओके। और जो मिट्टी निकाली थी, उसी मिट्टी को हमने ऐसे बीच में हाथ में रख के, और उसको ऐसे घुमा के एक थोड़ा सा गोल जैसा बना के, उसको हल्का सा हमें कॉइल टाइप का शेप देना है, जैसे ये कॉइल टाइप का शेप दिया है मैंने, उसी मिट्टी को जिसको हमने निकाला है। इसको कहाँ फिक्स करेंगे हम? इसको हम वही फिक्स करेंगे जहां से निकाला था। क्लियर है? ओके सर। ठीक है। यस सर। Yes, sir. अभी आप देखो कि आप उसी चाकू की मदद से Yes, आप इसको sir. थोड़ा सा ऐसे राइट साइड और लेफ्ट साइड ऐसे पिंच करेंगे, ऐसे और ऐसे, ओके। और इस तरीके से फिर आपका क्या बचा, अभी देखो चेहरे में बहुत सारे वो होते हैं फेसेस। अब आपको मैं बता दूं कि जैसे आपकी कोई भी एक चेहरा लेते हैं, जैसे हमारे सामने कौन है, ये आयुष है, कोई आयुष आपका, आप स्टूडेंट है, टीचर है? आयुष आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही आयुष। चलो कोई नहीं, हम आपकी फेवरेट टीचर जपन मैम को ले लेते हैं। हाँ सर बोलिए। ठीक है, जैसे कि जपन मैम है, अब भी जपन मैम का जो चेहरा है ना, अगर हमें वो बनाना हो तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जपन मैम की नोज जैसे मुझे कैमरे में दिखाई दे रही है, उनके जो चिक है, चिक के पास में जो रिंकल निकल के आते हैं ना, वो आपको रिंकल बनाने हैं यहाँ पर ऐसे, उसी चाकू से। और क्या करना है, उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा हटा देना है वहां से, नोज के नीचे से, ओके, इस टाइप से। और हाथ से, उंगलियों से इनको बहुत अच्छे से सॉफ्ट तैयार करके हमें इसको थोड़ा सा मर्ज करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, एक छोटा चेहरा बना रहा हूँ मैं। अब बात आती है, हम देखो लिप्स भी आपके लगभग बन गए हैं। लिप्स बहुत अच्छे से तो अभी नहीं बनेंगे क्योंकि टाइम लगता है, लेकिन फिर भी हम इनको उसी चाकू की मदद से थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे लिप्स तैयार हो गए, ये चिक हो गए। अब हमारी आईज की बारी है, हमें आंखें कैसे बनानी है। सबको पता आंखें कैसे बनती है कि नहीं पता? पता है? चलो बताओ जल्दी से, कोई बताए मुझे एक बच्चा जिसने आंखें बनाई हैं। सर चाकू से और कैसे? चाकू सर से। क्ले की बॉल बना के सर, छोटी छोटी आंखों की जगह पे चिपकानी होती है सर, उसके ऊपर फिर क्ले पुट करनी होती है। और ओके ओके ओके, चलो मैं अब आपको नया आइडिया बताता हूँ आप कैसे बनाती है। थैंक यू, अच्छा लगा आपने बताया बच्चे, बहुत बढ़िया बनाया कि आपको सबसे पहले बॉल लगानी है। अभी आपको मैं अब
थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाता हूँ। आपने जैसे जो कॉइल बनाई थी ना, पहले हमने लिप्स के लिए जो कॉइल बनाई थी, वैसे ही कॉइल बनानी है, 2 एक जैसी। तो इन कॉइल्स को आपको क्या करना है, आइज वाली जगह पे ऐसे फिक्स करना है, ऐसे। यस सर। ठीक है, सेम कॉइल इधर फिक्स करनी है। ओके, आपने 2 कॉइल्स फिक्स की। ओके सर। दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, अभी आप वापस नाइफ को ले लो, अपने नाइफ को, और नाइफ लेने के बाद उससे पहले आप ड्राइंग कर लो उसमें थोड़ी सी। आप ड्राइंग किस चीज से करो, किसी भी टूल से ड्राइंग कर लो। जैसे कि मैंने एक सेंटर में ऐसे लाइन खींची ऐसे और ऐसे, दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अभी क्या करना है, आपको उस नाइफ को ऐसे रखना है उस पर ऐसे। तो नाइफ थोड़ा बड़ा नहीं, आपको थोड़ा बारीक लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो पोर्ट्रेट बना रहा हूँ बहुत छोटा बना रहा हूँ। अगर मैं बड़ा बनाता तो और आपको ज्यादा समझ में आता। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ताकि आपके पास अगर किसी के पास क्ले हो तो आप लाइव कर सकते हो उस काम को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस नाइफ से उस लाइन के सेंटर में रख के चाकू को ऐसे प्रेस करना है अंदर। ठीक है, वैसे जस्ट उसके अपोजिट साइड दूसरी साइड से ऐसे प्रेस करना है अंदर। ठीक है, इस टाइप से। ओके सर। आपको प्रेस की हुई दिख रही है आंख? यस सर। यस सर। है ना? वैसे ही सेम इसको भी प्रेस करना है आपको, ये और ये। तो मुझे ये बताओ, क्या ये आंख जैसी लग रही है अभी? नो सर। सर थोड़ी थोड़ी है। थोड़ी सर लग थोड़ा रही है, बहुत क्योंकि अभी आया है। इसमें काम हुआ नहीं है बहुत ज्यादा। ये कौन स्मार्ट बच्चा है जो थोड़ी थोड़ी बोल रहा है? मुझे लग रहा है इसको बहुत अच्छा बच्चा है, ये सर मी बहुत काम हियर। करता है। वेरी गुड। ओके, तो अभी क्या है, हमने क्या किया, इसकी डेप्थ निकाल ली आंखों की। अब इसको हमें थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन में लेके जाना है कि कैसे इसको थोड़ा और सुंदर बनाए। तो आंख के ऊपर जो पलक होती है ना, हमको उसको ऐसे 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 मर्ज करना है ऊपर वाले हिस्से में। किससे? चाकू से, या तुम्हारे पास जो भी टूल मौजूद हो उससे। ओके, देन उसके बाद फिर नीचे की जो पलक होती है वो भी बनानी है हमें इस टाइप से, इस टाइप से। समझ में आ रहा बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। अभी कौन सी वाली आंख अच्छी लग रही है इसमें आपको? सर थोड़े से नीचे कीजिए ना, दिख नहीं रहा। नीचे करो। अब दिख रहा है। कौन सी वाली आईज अच्छी लग रही है आपको? लेफ्ट जो अभी सर, बना लेफ्ट रहे वाली। हैं सर, आप जो अभी बना रहे हैं। ओके, जो अभी तो बना अभी रहे क्या है, तो आपको इसमें धीरे धीरे, जब आप इसमें धीरे धीरे काम करेंगे आगे, तो बहुत सारी चीजें आप डिटेल में लेके जाएंगे। जैसे कि ये टूल है, ये वायर टूल है, ये बनाया जाता है। इससे हम क्या है, इसमें से जो एक्स्ट्रा किले है उसको खींच खींच के निकाल लेते हैं बाहर, है ना? हमें बॉडी को बहुत अच्छे से शेप देना है या किसी भी करेक्टर को शेप देना है, तो ऐसे धीरे धीरे उसको शार्प करेंगे, मिट्टी को रिमूव करके बहुत आराम से, ऐसे इस टाइप से, जिसमें हमारी नोज भी अच्छी लगनी चाहिए, लिप्स भी आने चाहिए। समझ आ रहा है सबको बच्चे? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। देखो, समझ में नहीं आया ना तो फिर मत पूछना, क्योंकि पूछोगे तो हो नहीं आप लोग, जब मैं कहता हूँ तब पूछते हो। देखो, पंजाब का नाम रोशन करना है, कमला नेहरू स्कूल का नाम रोशन करना है आपको, है ना? और आपको यहाँ से आगे जब जाना है तो आपके पास बहुत सारे कॉलेज हैं इस फील्ड में पढ़ाई करने के लिए। जैसे कि सबसे नजदीक तो आपका हमारा लवली यूनिवर्सिटी है। तो इस तरीके से आप ऐसे सेक दोगे आप उसमें। अभी इसके हमने बाल नहीं बनाए, इसके बाल भी बनाने हैं हमें।
तो एक साइड का मैंने सर clear गंजा ही किया है। रहने दो। क्यों गंजा क्यों? आपको बाल अच्छे नहीं लगते बेटा? मैम का तो बाल है। मैम का, ये मैम का नहीं बन रहा है। मैंने तो मैम का एग्जांपल दिया था कि जो हमारे नोज के बगल में जो चिक जब हम हंसते हैं ना, तो उसके कैसे वो जो लाइन के बाहर जो मांस निकल के आता है वो कितना अच्छा होता है। क्योंकि जब आपकी जपन मैम हंसती है तो देखो, अभी हंस रही है तो देखो दूर से दिख रही है, जो लाइन दिख रही है चेहरे में। हाँ देखो, वो इशारा करके भी बता रही है वैसे। ठीक है, तो अभी हम सेकंड आइज पे चलते हैं। पहले इसको भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ओके, सेकंड आइज भी हम वैसे ही बनाएंगे, सेम टू सेम। हमें थोड़ा सा डेप्थ देनी है उसको जगह के अनुसार, जहाँ जैसी हमारी आंखें होती हैं, और जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो हमको निकाल देनी है बाहर से। और वापस उसी टूल से, वायर वाला जो टूल है, उससे हमें मिट्टी को बाहर निकालना है थोड़ा थोड़ा। इतना आपको क्लियर आ रहा है ये? यस Yes, सर। sir. यस सर। अब इसमें थोड़ा अभी देखो, ये तो होगा एक बेसिक फॉर्म हो गया। जब इसके साथ हम थोड़ा सा और क्रिएटिव करते हैं ना, थोड़ा हंसाने वाला काम। अभी जैसे ये मैंने बनाया हुआ है इसके साइड में, ये बहुत बारीक है, ये इससे थोड़ा बड़ा है, और इससे भी बड़ा हम बना सकते हैं। हमारे पास टाइम है मैम अभी? मैम हमारे पास टाइम है बड़े वाले पोर्ट्रेट के लिए? 12 बजे तक है ना? ओके, हाँ ओके ठीक है। तो ये पोर्ट्रेट आपका एक छोटा सा पोर्ट्रेट है जो मैंने आपके सामने बनाया। इसमें हम अभी नोज के लिए जगह बनाएंगे, नोज के लिए, क्योंकि भाई वो सांस कहाँ से लेगा? अब जपन मैम को हम नोज नहीं देंगे तो सांस नहीं ले पाएंगे ना। क्यों बच्चों? यस सर। यस यस सर। सर। तो हमने नोज बनाई, उसमें होल भी किए ताकि हम सांस ले सके। तो ये आपका एक छोटा सा पोर्ट्रेट का डेमोन्स्ट्रेशन हो गया बेटा। आपको मैं एक दो पोर्ट्रेट, अब बड़े वाले पोर्ट्रेट दिखाता हूँ, ठीक है? सर मेरे को कुछ पूछना है सर इसके बारे में एक बार। यस बच्चा पूछो। सर जैसे आपने पहले लेफ्ट वाली आंख स्टार्ट की और उसके बाद में राइट वाली स्टार्ट की, और वैसे ही आपने नोज में भी लेफ्ट साइड पहले होल किया। तो सर ये इसका कुछ रहता है कि लेफ्ट साइड पहले काम करना आता है या राइट साइड पहले कर सकते हैं? नहीं बेटा नहीं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं कैमरे के सामने काम कर रहा हूँ, तो मुझे एक साइड में खड़ा होना पड़ रहा है, मुझे आपको भी दिखाने की वजह से। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही काम करना स्टार्ट कर रहा था, अन्यथा मैं तो चिन से भी स्टार्ट करूंगा तो मैं आराम से बना सकता हूँ उसे। अभी मैं आपको, है ना, जब आप करोगे ना आगे काम तो आपको समझ में आएगा। ये एक पोर्ट्रेट देखिए आप सामने, ये एक पोर्ट्रेट दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ये सबको So दिखाई nice, दे रहा sir. है ना? तो ये भी पोर्ट्रेट है, ये थोड़ा साइज में बड़ा किया हुआ है। दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Very यस nice. सर। Very बहुत अच्छा nice, बनाया sir. सर। हाँ ओके, जी सर। ये हमारे सर बहुत एक, अच्छा बनाया है। अरे वाह बहुत वाह, वेरी मेहनत गुड, की है थैंक आपने यू। सर। आप लोग भी बनाओगे वैसा ही बनाओगे, और बस आप लोग और स्केचेस भी अच्छी चीजें लग देख रही हैं सकते सर हैं। जो बनाई हुई है। यहाँ बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, आप ये भी देख बहुत सकते हैं, सारी, बहुत है ना? सारी। सो होता क्या है कि अभी आपका 12th स्टैंडर्ड चल रहा है, और 12th के बाद हमें सबको पता नहीं होता है कि हमें किसको किस फील्ड में जाना है, क्योंकि कुछ तो हम लोग प्रेशर में रहते हैं और कुछ लोगों को नॉलेज होती है तो कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होती है। ओके, तो डेमोन्स्ट्रेशन तो मेरी तरफ से ऑफ है, मैं आपसे वर्बली थोड़ी बातें कर लेता हूँ ताकि आप लोग अभी तुरंत पास आउट हो जाओगे 12th के बाद।
और आपको कहाँ कितनी जरूरत है, कैसे कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है, ये जरूरी है लाइफ में। तो होता क्या है, आप लोग कौन कौन इंटरेस्टेड है अपने फील्ड में? सर फाइन आर्ट कौन कौन पसंद करता है? सर मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। सर मैं भी हूँ सुनील। तो देखो, आपके स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूँगा, इसलिए क्योंकि आपके लिए आपका स्कूल बड़ा डेडिकेटेड है कि आपको अच्छी एजुकेशन दे। क्योंकि मुझे जपन मैम से जब बात हुई है तो जपन मैम ने उनको बताया कि हम अपने बच्चों को थोड़ा सा किले के बारे में भी बताना चाहते हैं, थोड़ा सा ड्राइंग के बारे में बताना चाहते हैं। वैसे वो ऑलरेडी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सब। तो आपको 12th के बाद तुरंत जाना होता है बाहर, आपको प्रॉपर फील्ड का पता नहीं होता है। अगर आप फाइन आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चंस हो, आपके पास कुछ पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं हमसे इसी टाइम। बाकी का मेरी तरफ से डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट है। Raising their hand, you can ask them, sir. सर कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया है, आप उनसे पूछ लीजिए सर। दे हैव सम क्वेरीज और क्वेश्चंस। यस पूछ सकते हो बेटा। कौन पूछ रहा है बताओ? देखो सबके सब स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है मेरे स्टूडेंट। यस प्रशांत, गो अहेड बच्चा। प्रशांत पूछो बेटा, क्या पूछना है? सर आप ही बता दो कुछ, ये पूछने वाले तो है नहीं कोई। चलिए मैं ही बता देता हूँ। आई नो, क्योंकि हम लोग 12th लेवल में बहुत ज़्यादा भी समझ तो रखते हैं, लेकिन शायद हम लोग अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा समझ नहीं रखते, क्योंकि अभी अभी हम लोग 10th और 12th स्टैंडर्ड की एजुकेशन पढ़ाई करके आगे निकलते हैं। तो बेसिकली पता होता है, सबका अपना इंटरेस्ट होता है कि किसको किस फील्ड में जाना है, किसको किस फील्ड में नहीं जाना है, और किसका फ्यूचर किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो बेसिकली सबको नॉलेज होती है। बट उससे भी पहले ये है कि आप अपने इंटरेस्ट को भी देखो, और आप अपने फिजिकली आप जो काम करते हो, आप किस में ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर अभी हमारे बीच में जितने भी फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स आए हुए हैं जिन्होंने इंटरेस्ट लिया है, तो होपफुली वो फाइन आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो फाइन आर्ट की रिगार्डिंग अगर थोड़ी बात बताऊं तो बस इतना है कि आप इस फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। आप इस फील्ड में अच्छी इमेज बना सकते हैं अपनी। जैसे आप मुझे देख रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे इससे पहले कभी देख पाते या नहीं, बट देख रहे हो तो इसका मतलब मैंने बहुत मेहनत की है, और इसीलिए मैं आपके सबके सामने हूँ। तो वो एनर्जी, वो जज्बा आपके पास होना चाहिए, ताकि वो आप आगे ऐसे ही मेरी तरह कहीं और प्रेजेंट कर सको अपने आप को। आपको मेरे जैसे, मुझे आपको 100 बच्चे देख रहे हैं, या 10 20 50 बच्चे जितने भी हमारे बीच में हैं, वो मुझे देख रहे हैं, और वो मुझे पहचान जाएंगे जब भी कभी देखेंगे, कहीं मिलेंगे। तो वैसे ही आप भी अपनी पहचान बनाओ। फाइन आर्ट में अगर आपका फ्यूचर आपको लगता है, मेरी तरफ से तो डन है, आप हमेशा फाइन आर्ट में जा सकते हो। इसमें पेंटिंग है, स्कल्पचर है, अप्लाइड भी है, बहुत सारे वेराइटीज हैं कोर्स के अकॉर्डिंग। और बाकी आपके टीचर्स आपको बताते होंगे, है ना। फोटोग्राफी भी है, फोटोग्राफी में आप फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हो। स्कल्पचर्स से आप सेट डिजाइन बना सकते हो, फिल्म इंडस्ट्री में अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा सकते हो आप, बाहर आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं आप। वैसे ही पेंटिंग में है, आप पेंटिंग में वर्कशॉप, कैंप, तो बहुत सारे ऐसे आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी होती है फाइन आर्ट में कि आप आराम से अपना जीवन अच्छा गुजार सकते हो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो बस 12th के बाद आप सोचो कि आपको किस फील्ड में जाना है। फाइन आर्ट की तरफ से आपको क्लियर हो गया जो मैंने बताया उस हिसाब से। अगर इसके रिगार्डिंग और किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो।
कि और क्या क्या होता है या क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आप पूछ सकते हो। Hello. There's someone named with Sarang. He is asking to make bust. Can you show us the structure of wood or metal? फॉर बस्ट, हाँ जी, कोई स्ट्रक्चर वुड या मेटल में बता सकते हो? यस 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 यस, स्ट्रक्चर जरूरी है उसके लिए, क्योंकि जब आप एक हाइट पर काम करने जाते हैं, होता क्या है कि अभी मैंने जैसे ये पोर्ट्रेट बनाया, ये छोटा सा पोर्ट्रेट है, बिकॉज इसकी जो क्ले की जो स्ट्रेंथ है ना, या कोई भी मीडियम हो, जब भी हम उसके डिमांड से एक्स्ट्रा उससे एफर्ट डालते हैं उसके ऊपर, तो वो उसकी डिमांड और बढ़ती है। तो सपोज दैट ये 6 इंच का पोर्ट्रेट है, मैं इसको अभी 3 फीट का बनाने लगूंगा, तो मुझे इसके अंदर स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर, आर्मेचर्स, वो सारी चीजें हमें जरूरत पड़ती है एक डिमांड पर, और आपकी डिमांड जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो आपको आपकी डिमांड बता देता है, उसी टाइम आपको बताएगा कि मुझे इसकी नीड है, और आप उसको अरेंज करोगे, डेफिनेटली करोगे। One question from my side, sir. Yes. How much armature is important? What? आर्मेचर कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब आर्मेचर के बिना भी बन सकता है या? देखो आपका वर्क देखा है मैंने, जपन मैम, आपका एक वर्क देखा, आपने एक बड़ा सा पिग बनाया था कहीं किसी सिंपोजियम में, आपने एक बहुत बड़ा पिग बनाया था जिसका 15 फीट हाइट था। तो मे बी आपको पता ही होगा। आप बच्चों के लिए अगर बताना चाह रहे हैं तो मैं बताऊंगा कि आर्मेचर एक हाइट पर जाके ही काम आता है। जब आप बड़ा काम करते हो तो आर्मेचर जरूरी है। फॉर एग्जांपल, आप जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, बड़ा घर बनाते हैं, तो उसमें पिलर्स डालते हैं, पिलर्स के अंदर हम आयरन रॉड्स डालते हैं, तो वो इसलिए जरूरी है कि उनसे स्ट्रेंथ बनती है। आर्मेचर आपको अंदर से सॉलिड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आपकी बॉडी है, जैसे आपकी बॉडी में हड्डियों को निकाल दिया जाए तो आपको लगता है कि मोटू पतलू सब खड़े हो पाएंगे? सब नीचे गिर जाएंगे, है ना? Okay, sir. Sir, Vishant and Kinjal is there. They want to ask you something, sir. पूछो विशांत। सर फाइन आर्ट्स का स्कोप इंडिया में कैसा है, और मैम और सर अब्रॉड में कैसा है? अब्रॉड में देखो, स्कोप अच्छा है कि कैसा है? बहुत बढ़िया है, दोनों साइड बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, थोड़ा सा इंडिया में हमारी फाइन आर्ट को, क्योंकि हमारे यहाँ पर होता क्या है कि सबकी कमाई एक जैसी नहीं है, और ये बहुत रिचेबल फील्ड है। अगर इसमें पैसा अच्छा है और किसी के पास पैसा अच्छा है तो उसका पूरा आनंद लेता है। तो इंडिया में तो कॉमनली बहुत लोग तो अपनी रोटी के लिए सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बच्चा, इसके बारे में मैं बोल दूं आपको? हाँ मैम, अभी मैम से बताता हूँ। आप जितना डाइजेस्ट करोगे उतना आप खाना अच्छे से खा पाओगे, समझ गए? इसका मतलब ये है कि इस फील्ड में ही नहीं, हर फील्ड में आप जितनी मेहनत करोगे उतना आप सक्सेस पाओगे, चाहे वो इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो, ठीक है? अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप आगे नहीं जाओगे। आपको मेहनत करनी पड़ती है, मतलब कि खाना डाइजेस्ट करने के लिए आपको वर्जिश करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना, योगा करना पड़ता है, वॉक करना पड़ता है, रन करना पड़ता है, तब जाके आपका खाना डाइजेस्ट होता है। उसी तरह इसमें आप स्टडी करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ड्राइंग्स करना पड़ता है, हर दिन 100 स्केचेस आपको बनाने पड़ते हैं, और आप इससे इस बेसिक जो भी इसका नॉलेज मिलता है आप उससे अच्छे से स्टडी करना पड़ता है। जब आप बेसिक को अच्छे से स्टडी कर पाओगे तब जाके आप इसमें सक्सेस पाओगे बेटा, ठीक है? जो कुछ भी डिपेंड करता है वो कलाकार मतलब आप पे डिपेंड करता है, किसी कंट्री को डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? आप जितनी मेहनत करोगे उतना आप सक्सेस पाओगे, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो, ठीक है बेटा? आई समझ में बात? ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। Sir, next we have Kinjal. और किसी का कोई क्वेश्चन? Kinjal is Good there. afternoon, sir. यस किंजल। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। आप मोटे हो पतले हो ये बताओ पहले। हाँ पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हो?
Yes, Kinjal, beta, you can ask your query. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा, बोलो। सर मैं सर अपने वर्क के लिए बहुत मेहनत करती हूँ सर, बनाने के लिए कोशिश करती हूँ, पर सर अच्छा नहीं बनता, बेस्ट नहीं बनता। ओके बेटा, देखो ये आप बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ये सबके साथ आता है, ये मेरे साथ भी कभी हुआ। सर वो तो मेहनत पे है। हाँ, वो मेहनत पे ही है, बिल्कुल सही बात है। मैं भी वही कह रहा हूँ कि मेरे साथ भी यही था। बट फैक्ट ये है कि आप ना सबसे पहले अपना पेशेंस बना के रखो। जब आपका पेशेंस आप बना लोगे तो डेफिनेटली आप वो अचीवमेंट ले लोगे जो आप चाहते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, हम टाइम दे रहे होते हैं। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी है, आपका पेशेंस नहीं ब्रेक होना चाहिए, पेशेंस बना के रखो। होपफुली आप जो चाह रहे हो वो बना लोगे आराम से। मैं कह रहा हूँ इस बात को क्योंकि मैं भी तुम्हारी एज में था और मैंने वैसे ही प्रॉब्लम्स फेस किए थे। सो आज मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ बिकॉज मैंने पेशेंस बना के रखा है। यस सर। थैंक यू और सर। ना सर पेशेंस के साथ सर मेंटली और फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होना होता है सर, उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है सर। पता है बेटा, बच्चा जो है ना पैदा होते ही चलता नहीं है ना। यस उसे वक्त लगता है ना, धीरे 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 वो स्टेप डालना शुरू करता है। वैसे ही हर फील्ड में आप धीरे 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 उसका नॉलेज गेन करते जाओगे। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है। Excuse me, sir. यस बेटा, बोलो। सर ये क्या बना रहे Sir, हो आप? can I ask something? यस बेटा, यस। सर मैंने पूछना था कि आपको एक फुल मॉडल तैयार करने में कितना टाइम लगता है, वेरी गुड। और जिसने अभी तक कुछ सीखा नहीं है और उसको कितना टाइम लगेगा, मे बी जो लर्नर है, जो बिगनर है। देखो बेटा, क्वेश्चन इतना अच्छा किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारा कुछ आता होगा। बट ठीक है, देखो जो बिगनर है उसको अभी सीखना चाहिए और सीखने के लिए उसे बहुत टाइम लगना है। क्योंकि ये तो ऐसा फील्ड है कि जब जैसे होता है कि सपोज दैट कोई पोर्ट्रेट बनाया आपने, कोई आंख बनाई या कोई लिप्स बनाया, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, जब उस ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं तो जितना उसमें टाइम देते हैं वो उतना ही सुंदर होता जाता है, और जितना टाइम देंगे उतना ही सुंदर होता जाएगा। तो उसकी था नहीं है। तो बिगनर के लिए आप प्रपोर्शन, आप स्टडी अपनी स्किल बढ़ाने के लिए उसको कंटिन्यू रखिए, आपकी स्टडी कंटिन्यू रखिए, अपने सीनियर या अपने किसी अच्छे टीचर के साथ में जुड़ के उनके टेक्निक्स, है ना, जब तक आप टेक्निकली और मेंटली और आपका जो स्किल है वो स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप रिजल्ट नहीं ले सकते उस हिसाब से कि हम बहुत जल्दी कर लेंगे या बहुत देर में करेंगे। और मैं मेरी बात बताऊं तो मैं एक लाइफ जो है फुल फिगर लाइफ है, मैं उसको लगभग 8 से 10 दिन में कंप्लीट कर देता हूं प्रॉपर वेल फिनिशिंग के साथ में। और ये हमेशा रहता है, मैं करता आ रहा हूँ बहुत दिन से। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर आपको पोर्ट्रेट में कितना टाइम लगता है? पोर्ट्रेट में बेटा पोर्ट्रेट कई टाइप का होता है। एक पोर्ट्रेट होता है जो आप देख के रियलिस्टिक बना रहे हो, कलर से बना रहे हो, पेंसिल से बना रहे हो। तो पेंसिल पोर्ट्रेट में रैपिड पोर्ट्रेट जो होता है वो विद इन 5 to 10 मिनट में बन जाता है। बहुत जल्दी हम लोग उसका जो फेस का जो एक्सप्रेशन है वो फटाफट निकालते हैं। तो रैपिड स्केचिंग में आप 5 से 10 मिनट के अंदर पोर्ट्रेट निकालते हो। जब उसके बाद हाइपर रियलिस्टिक में जाते हो तो 2 से 3 दिन भी लगते हैं, 6 घंटे भी लगाते हैं। तो वो आपकी स्किल के ऊपर है, आपकी स्टडी के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी बना सकते हैं। कम से कम टाइम में 5 से 10 मिनट लगते हैं पोर्ट्रेट बनाने में। हेलो। यस सर। आपने कौन सी क्ले यूज की योगेश। सर? यस सर। मैं एक प्रोफेशनल पेंटर हूँ, लेकिन मुझे इस क्ले में इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं ये पूछ रहा था। मेरा नाम सारंग है, मैं बड़ौदा से हूँ। और कल ही मेरे फ्रेंड ने आपका ये जो लिंक है शेयर किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आर्मेचर से बनाता हूँ, जैसे वुडन, मेरे पास वुडन प्लैंक है, उसके ऊपर मैंने एल शेप में ये लगा दिया है, वो जो दीवार पे हम लगाते हैं ना, एल शेप में एक स्ट्रक्चर आता है कुछ इस टाइप का। हाँ, थोड़ा सा उस तरह का है। असल में वीडियो में थोड़ी ब्लरनेस आ रही है, इसलिए हम थोड़ा इमेजिन करके चल रहे हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम ये स्ट्रक्चर लगाते हैं, जैसे सुतली लगाई आपने, है ना, तो जब क्ले जो सूखने लगती है तो हम क्या करते हैं?
क्योंकि इसको तो मेरे ख्याल से बहुत ड्यूरेशन लगता है। जैसे मैं पोर्ट्रेट कर रहा हूँ सामने बैठ के, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे बहुत देर तक अगर मुझे काम करते रहना है, क्या उसे थोड़ा गीला रखते हुए या स्प्रे करते हैं, क्या करते हैं सर? देखो, उसके स्टेप्स के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी बहुत अच्छा सवाल किया। बाकी बच्चे भी सुन लें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो लोग ध्यान से सुने कि जब आप किले में काम करते हैं तो मोस्टली किले दो टाइप की होती है। एक तो आर्टिफिशियल किले जो आजकल मार्केट में मिल जा रही है, जिसको सूखने का कोई डर नहीं है, जिसको हम ऑयल किले कहते हैं। और एक किले जो नेचुरल किले होती है, जो हमें खेतों से और तालाबों से मिलती है, जो पॉटर्स होते हैं वो यूज करते हैं। उस किले में, इन दोनों किले में अलग अलग तरीके से काम होता है। ऑयल किले में आपको किसी भी प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है, उसको मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसे खुला रखो, बिना रैप किए रखो। लेकिन जब आप वाटर किले में काम करते हो, उसमें आपको बहुत सारी चीज की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट, आपको उसको रैप करना है। जब भी आप काम करके हटें, उसको प्रॉपर एयर टाइट रैप करना है। दूसरा, एक स्प्रे रखें। आपको डायरेक्ट पानी नहीं डालना है उस किले पे, आपको स्प्रे से पानी डालना है। स्प्रे से क्या है कि समान मात्रा में पानी उसके ऊपर जाता है। और कभी भी पोर्ट्रेट को या क्ले के सरफेस को आप पानी से ऐसे करके चिकना नहीं करेंगे, आप उसे नहीं। जैसे ही आप चिकना करते हो तो उसका सरफेस बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर पानी ऑब्जर्व करने की उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, और इस वजह से बहुत जल्दी क्रैक होता है। तो ये चीज, दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। आप जब भी काम करो, उसको प्रॉपर रैप करना है काम खत्म करने के बाद, और उसमें पानी का स्प्रे से आपको टाइम टू टाइम स्प्रे करना है, बस ये है। और उसके बाद आप उस पोर्ट्रेट को 1 महीने तक चला सकते हो, उसमें कुछ नहीं होगा। थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है सारंग सर। बहुत बढ़िया, मजा आया सर। आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर फ्यूचर में आप एक और रखे जिसको बहुत ही इंटरेस्ट, मोल्डिंग कास्टिंग, थोड़ा सा अगर आप रखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। होपफुली आप उधर से कोई आपको लगे तो ये हम करा सकते हैं। हमारी बीच में हमारी डॉक्टर विश्वेश्वरी मैम बैठी हैं, अच्छा। वो हम सबको कोऑर्डिनेट करती हैं, बिकॉज हमारी सीनियर फैकल्टी हैं, हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो बहुत नाम कमाए हुए हैं। तो हाँ। विश्वेश्वरी मैम, आप जरा बताएं कि सर का कुछ कहना है, और आप देखिए कैसे इनको। सारंग सर, जरूर हम आपके लिए करेंगे, क्योंकि हमारा फील्ड ही सबको खुश करने के लिए ही बना है। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि जो भी इस फील्ड के बारे में जानना चाहता है, जो भी इसमें काम करना चाहता है, हम उन्हें 24+7 आवर्स हम लोग आपके लिए रेडी हैं सर। आप जब भी आप चाहोगे आप सीख सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। सर मैं कुछ बताना चाहता हूँ सर आपको। जो बाकी बच्चे हैं सर, उनको आप बताओ कि कैसे स्टार्टिंग में इंटरेस्ट होता है, और बच्चों का फील्ड में जाने के बाद इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, क्योंकि इसमें सर फिजिकली बहुत मेहनत होती है। उसके बाद बच्चों का इंटरेस्ट टूटने लगता है सर, तो वो फील्ड में आने के बाद उस इंटरेस्ट को खो देने के बाद वो सर फील्ड को छोड़ के बीच में चले जाते हैं सर। मैंने देखा है काफी बच्चे चले जाते हैं। तो उससे क्या है सर, उनका टाइमिंग और उनकी मेहनत, और जो बाकी बच्चे उनकी जगह पे आ सकते थे, वो शीट बुक हो जाती है, और बाद में वो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बाद में छोड़ के चले जाते हैं। तो सर वो आप एक बार बच्चों को बताओ कि स्टार्टिंग में इंटरेस्ट कैसा रहता है, और इंटरेस्ट कैसे बना रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए लगातार, जिससे उनका इंटरेस्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर यानी कि फोर्थ ईयर तक भी बना रहे, और वो बीच में ना जाए छोड़ के फील्ड को, क्योंकि उससे उनका बच्चों का और काफी दूसरे बच्चों का भी नुकसान होता है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने सच में एक बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चंस किया है। क्वेश्चन को इतना कि जल्दी कोई एब्जॉर्ब नहीं कर पाता इस चीज को, कि हम लोग, क्योंकि ये टाइम मेरे साथ हुआ है, और मैं मेरे बिहाफ पर ही बताऊंगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वही बताऊंगा कि स्टार्टिंग में हमें हर चीज अच्छी लगती है। कहते हैं कि जब दूर से जंगल दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है, हरा भरा लगता है। जब उसके अंदर जाते हैं तो फिर हमें वो कभी कभी काटने को दौड़ता है। तो मेरे Yes, साथ sir. भी यही हुआ है। लेकिन मैं अपने गुरुजी को जब भी याद करता हूँ, हमारे डॉक्टर राजीव नयन सर हैं, जो लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से हैं। उन्होंने ये सिचुएशन जब मैंने उनको बताई, उन्होंने ये सुनी, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप ऐसा करो, 15 दिन के लिए आप कुछ मत करो और बैठो, बस कुछ मत करो, सिर्फ बैठो। तो उनका कहना मुझे समझ नहीं आया,
कि वो बैठने के लिए क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि जाओ, बहुत अच्छे से खाओ पियो, एंजॉय करो, कहीं मत जाओ, आपको कहीं कोई जरूरत नहीं है। तो होता क्या है कि थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेना भी जरूरी है बच्चों को। आपका इंटरेस्ट माइंड तभी को बना ब्रेक रहेगा, माइंड को ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक छोटा सा, मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ, अभी के अभी आप अभी करके देख सकते हो इसको। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, मैं अभी आपके सामने, आप सब कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास जो भी सेकंड कैंडिडेट बैठा है, आप उसको कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 15 सेकंड कंटिन्यू देखो उसके चेहरे को, सिर्फ 10 से 12 15 सेकंड ओनली। आप 15 से 20 सेकंड में आप पता क्या पाओगे कि जिस चेहरे को आप रोज देखते हो, एवरी डे देखते हो, रात दिन देखते हो, उस चेहरे को अगर आप कंटिन्यू देखोगे तो वो चेहरा आपके सामने डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा। डिस्ट्रॉय लाइक कि आपको ऐसा लगेगा कि क्या सच में ये चेहरा ऐसा ही है क्या, जो आप कॉमनली देखते हो। उसी चेहरे को आप कंटिन्यू बहुत डेप्थली देखोगे तो वो चेहरा आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट या ब्रेक होता हुआ दिखेगा। यस यस सर। आप अपने पापा को रोज देखते हो, अपनी मदर्स को रोज देखते हो, अपने भाई को रोज देखते हो। आज अभी के अभी सेशन के बाद अपने भाई के चेहरे को, मदर के, पापा के चेहरे को कंटिन्यू देखना। अजीब लगते हैं सर, अजीब लगते हैं ना ये उनके। मैंने अभी क्या है, पहले भी वही नोटिस किया है। वही बस। तो ये जो विखंडन है, पता है आपका अपने मम्मी पापा के साथ क्यों बना रहता है, ये जो लगाव है, वो इसलिए क्योंकि आप उनको प्रॉपर तरीके से देख नहीं रहे हो। वही आपको ये फील्ड में भी देना है कि जब भी आप कोई काम करो, तो जैसे कोई पोर्ट्रेट बना रहे हो तो आपको 5 मिनट का रेस्ट देना है। और उस रेस्ट से आपके 2 फायदे होते हैं, आपको रिफ्रेशमेंट मिलती है, दूसरा आपके बनाए हुए उस ऑब्जेक्ट में थोड़ी गलतियां भी आपको दिखने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये पेशेंस है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, तो बच्चा कभी कहीं नहीं जाएगा। कंपटीशन में हिस्सा लो, ताकि आपको कंपटीशन करने में आपको जब कोई अचीवमेंट मिलेगा तो आपको अंदर से और एनर्जी जनरेट होगी आपके अंदर। ठीक है, तो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा समझाया सर बच्चों को। पर मेरे को लगता है सर एक बात और रह गई है कि जैसे अभी बिगनर हैं बच्चे, तो उनका इंटरेस्ट होता है कि ऐसे आर्ट में पहली बार देख रहे होंगे कुछ बच्चे, तो उनका इंटरेस्ट बना हुआ पहली बार से ही, तो वो इंटरेस्ट लेके और फील्ड में चले जाते हैं। बाद में उनको सर अपने ऊपर मतलब खुद से काम करना होता है ना सर, तब बच्चे अपने आप ऊपर बोझ समझने लगते हैं काम को। उनसे जैसे क्ले सूखने के बाद वो क्ले दोबारा से कैसे हमें काम के लायक बनानी है, और स्क्रैप में कैसे काम करना है, उसमें हार्ड वर्क करना है, तो वो सर बच्चे हार्ड वर्क से कटने लगते हैं सर उस टाइम। तो वो उनसे नहीं हो पाता, तो इस फील्ड से हटना चाहते हैं सर। वो मैं कुछ नहीं, बताना चाह बिल्कुल रहा आपने ये बात सही बोली है, लेकिन इसमें दो कैंडिडेट्स का इन्वॉल्वेशन होना चाहिए, एक टीचर और एक स्टूडेंट। उन दोनों का रिलेशन अच्छा है। टीचर एक ऐसा होना चाहिए जो एनर्जेटिक हो, थोड़ा बच्चे में वो जुनून पैदा करे कि बेटा यही है बस, और ये करने से ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसमें अगर कहीं भी एक लकड़ी हिली तो ये रिजल्ट मिल सकता है जो आप बता रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट को भी और टीचर को। ठीक है विश्वेश्वरी मैम, सवाल चलते रहेंगे, किसी को कोई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना है तो कर सकता है। like to say something, please excuse me, Principal. Yes ma'am, Paramjeet ma'am. I want to thank Dr. Vishweshwari Tiwari ji and Yogesh Kumar ji for such a wonderful session. I was there through and through. Let me tell you, we all have artists in us. This artist in me could be out or it could be still there, sleeping inside me. हम लोग तो खुद ही एक ईश्वर के आर्ट बने हुए हैं। हमसे बेहतर आर्ट कोई इस दुनिया में है ही नहीं। इंसान से बढ़कर कोई क्रिएटिविटी नहीं है उस मालिक की। तो हम सब में एक आर्टिस्ट है, और मैं इसको तहे दिल से मानती हूँ और विश्वास भी करती हूँ कि वाकई हम सब के बीच में एक वो जो मालिक कलाकार है, उसने हम सबको बहुत खूबसूरती से बनाया है। मैं ये भी अग्री करती हूँ कि मैडम ने कहा कि हम सबको करना चाहिए, और मैं डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ माय, बिफोर आई लीव this earth and hang my boots, I am surely going to paint and draw certain things which is still a desire in me. एक फिजिक्स के बैकग्राउंड के होने के नाते कभी यूं कहना कि वक्त ही नहीं मिला, वो भी गलत बात है, क्योंकि वक्त तो 24 घंटे सभी के लिए, मेरे लिए भी था। पर कभी कभी कहीं कुछ लाइनें बना लेते हैं और अच्छा भी लगता है। कभी आर्ट में कोई 4 पोएम्स भी, कुछ 4-5 लाइनें भी लिख लेते हैं। सो नंबर 1, थैंक यू सो मच
Japanjot is a fabulous teacher, and we have Navneet as head of the department. Maybe she was a little occupied, could not join, but she too is par excellence. And these children who are here, they are real artists, you know. And when the live session goes for जब ये बच्चे हमारे teachers पढ़ाते हैं, तो बकायदा ये अपने drawing को दिखाते हैं. यहाँ तक कि पिछले कुछ समय पहले we had a team of about 15 Microsoft officials from USS Seattle. वो आज तक तारीफ करते हैं कि आपके फाइन आर्ट्स की क्लासेस बखूबी बहुत अच्छी होती हैं, and they were all out for that. मैंने बीच में कह दिया, आप लोग प्लीज अपनी बातों को कंटिन्यू करें. मुझे काम आ गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे निकलना पड़ेगा, और मैं बिना बताए नहीं निकल सकती हूँ. और आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं, मैं पूरे वक्त बैठ के सुन रही थी. So there is an artist in everybody. आपकी बात से एक बात मुझे ख्याल में आई, जैसे गॉड ने हमको बनाया, हम सबसे बेटर आर्ट है. मुझे ऐसा लगता है गॉड से पहले एक सबसे बड़ा आर्टिस्ट है वो मदर है. तो मेरी तरफ से बाकी का मैम विश्वेश्वरी मैम को बोलूंगा कि मैम आप हैंडल करिए, और जपनजोत मैम, नवनीत मैम, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको. अगर किसी को और कोई सवाल करना है तो. नवनीत ने हाथ उठाया है. नवनीत, are you our faculty? We have a student also, Navneet. Whosoever it is, please speak out before ma'am takes over. Good morning, ma'am. Yeah, thank you for being there. She's the head of the department. Thank you, ma'am. Thank you so much. So thank you so much for this wonderful and inspiring session. So I personally would like to say that I am really amazed by your art. How beautifully you mold your clay, how beautifully you handle your clay, and beautifully guided our students to pursue this course. I really enjoyed your session. So thank you, ma'am, so much for being there with us. So now I would like to say request to our academic vice principal, ma'am. Pastor ma'am, are you there? Please say some words for our session. Thank you, ma'am. Good morning, principal ma'am, and good morning all the dignitaries of a wonderful medium, the art medium. Thank you very much. I think it was a great session, a very creative session. Thank you very much for sparing your time. Thank you so much, please. Thank you. Thank you, ma'am, so much. So now I would like to request to our academic vice principal, ma'am, Ms. Charu, ma'am. Please say some words for our workshop. Thank you, Navneet ma'am, and thank you, Mr. Yogesh and Dr. Tiwari. It was an awesome session, and I was feeling that I would have been carrying some clay and would have done it and played with that. I have never done it. So that was the feel I was really carrying on during the entire session. I loved the entire session, and I think the students were so interactive and they would have loved your session. And we'll be looking forward to more such type of sessions from your end to motivate our students to work more in this field. Thank you. Thank you for updating us. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. So really very big thank you for the whole LPU team. We are blessed to having you here. So now, Mr. Ma'am, some words. Thank you, ma'am. Thank you to principal ma'am for being there, for being part of us. Ma'am was actually very much interested in all these kind of activities, and that's why our school is on this side right now. Thank you so much, ma'am, and thank you, ma. विशेश्वरी मैम. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच. हमारे इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें मतलब परमिशन दे दी है. प्रिंसिपल मैम को मुझे थैंक्स बोलना बहुत जरूरी बनता है, क्योंकि हमने कल ही इसके बारे में बात किया था और उन्होंने इतनी जल्दी हमें परमिशन दे दी कि हमें डेमो दिखाने का अवसर प्राप्त करवाया.
तो इसके लिए मैं अपनी एलपीयू टीम की तरफ से और अपने फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से सभी की ओर से मैं उन बच्चों को जिन्होंने इस सेशन में शामिल होके आज का डेमो देखा है, उन्होंने मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश भी किए होंगे उन्होंने, तो उन बच्चों को मैं सबसे पहले धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने 1 घंटा अपने पास पेशेंस निकाला है और उन्होंने एक प्रोग्राम को अटेंड किया है और कुछ सीखा है। तो हम सभी की ओर से उन बच्चों को भी धन्यवाद और प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद और आपके सभी Ma, you are on mute, I guess. I'm sorry, I'm really sorry. तो मतलब मैं तो अपने एलपीयू टीम की तरफ से और हमारे फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के सारे फैकल्टी की ओर से मैं आप कमला नेहरू स्कूल के प्रिंसिपल मैम और जो भी टीचर्स यहाँ पे शामिल हुए हैं और सारे उन बच्चों को जिन्होंने 1 घंटे से अपना पेशेंस को बनाए रखा है, हमारा डेमो को देखा है, उनको सभी को अपनी ओर से मैं सभी को धन्यवाद कहती हूँ। प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब स्कूल शुरू हो जाए तो आप हमें वहाँ आके हमारा प्रैक्टिकल बच्चों को दिखाने की परमिशन अगर आप हमें दे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकल बच्चे सीखे, सभी लोग सीखे, सभी अपने लाइफ में आर्ट के लिए कन्वर्ट हो जाए और अपना कम से कम टाइम उसे देने की कोशिश करे ताकि हमेशा वो अपने आप को जिंदा दिल महसूस करे और अपने जो भी काम का टेंशन होता है उस टेंशन से थोड़ा रिलैक्स फील करे। इसीलिए ये फील्ड में सभी लोग काम करना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करती हूँ और सभी को मैं अपनी एलपीयू की ओर से धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यू नेवर हियर अ नो फ्रॉम अस। या आप देखिए कितनी बार आप हमारे बच्चों से मिलना चाहते हैं, हमारी तरफ से हाँ है। अक्सर आपके डिपार्टमेंट में, आपके यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं, वुडवर्क के लिए उनके सेशंस हो चुके हैं। अब ये वक्त थोड़ा ऐसा आ गया, वरना हमारे बच्चे आपके यहाँ जाते रहते हैं। एक ही तो परिवार है, एजुकेशनिस्ट, और बच्चों की भलाई के लिए ही तो सोचते हैं। You always welcome, ma'am. You throw an invite and we grab it. Thank you very much, ma'am. Thank you.